साथियों नमस्कार। चूँकि मैं हर वीडियो में परिचय देता आया हूँ, लेकिन अपना सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगा। पराग सिंघल, जो आगरा से पिछले 12 वर्षों से एक टैक्स पत्रिका कर जानकारी का प्रकाशन मैं कर रहा हूँ, जिसका प्रबंध संपादक हूँ। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको तो मुझे मालूम, उनको तो परिचय मिल ही चुका है, लेकिन जो नए सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए परिचय मैं दे रहा हूँ। और साथ ही अनुरोध करूँगा कि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अधिवक्ताओं के बारे में अपने विचार रख रहा हूँ। तो धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। साथियों, सबसे पहले मैं रखूँगा कि अधिवक्ता की संविधान में और एक्ट में क्या व्यवस्था है। लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया इज़ गवर्न बाय द एडवोकेट एक्ट 1961, an act passed by the Indian Parliament which provides for law relating the legal practitioners in India and to provide for the constitution of Bar Council of India BCI and state bar councils. One है, under the powers granted in the act, the BCI has made rule known as BCI rule, which lay down rules for practice, legal education and professional ethics. Advocate Act 1961 replaced the earlier Indian बार काउंसिल्स एक्ट 1926। साथ ही इसमें जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 220 में का जिक्र करना चाहूँगा। दिया हुआ प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ, आर्टिकल 220 एंड नॉन एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग लॉ। द एक्सप्रेशन टू प्रैक्टिस द प्रोफेशनल ऑफ द लॉ इन सेक्शन 29 of the 1961 Act is wide enough to cover the persons practicing in litigious matter as well the persons practicing in non-litigious matters, and therefore to practice in litigious matters in India. The respondents were found to follow the provisions contained in the 1961 Act. साथियों, अगला है प्रैक्टिस द प्रोफेशनल ऑफ लॉ। चैप्टर 4 of the Advocate Act 1961 is titled Right to Practice. Section 29 states that only advocates are entitled to practice in the profession of law, and this right under Section 30 extends to all courts, tribunals and other authorities mentioned therein. Section 23 states that only a person enrolled as an advocate can practice in any court or before any authority or person. Section 32 enables the courts to permit even a person not enrolled as an advocate to appear before it in any case. The word advocates is defined in Section 2A, and on a reading of other clauses in these definitions in Section 2 means advocate who has enrolled with any state bar council. In the absence of a definition of the Advocates Act 1961, the practice of the profession of law would mean taking into consideration the historical evolution of this legislation of the mean practicing before court and tribunals, and would not apply to non-litigation work. साथी सेक्शन 29 कहता है एडवोकेट टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रूल मेड देयर अंडर देयर शैल एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे बी ओनली वन क्लास इन persons entitled to practice the profession of law, namely advocates. Section 33 advocate alone entitled to practice except as otherwise provided in this act or in any other law for the time being in force. अब देखिए, और in any other law for time being in force, no person shall on or after the appointed day be entitled to practice in court or before any authority शब्द आप देखिए, और person unless he is enrolled as an advocate under this act. यदि इसको आप मुझसे मांग सकते हैं, इस डेफिनेशन को जो मैंने
निकाला है विभिन्न अपने अध्ययन के अंदर। और मैं आता हूँ जीएसटी एक्ट की धारा 116, अप्रियंस बाय द अथॉरिटीज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। इसकी धारा 116 के अंदर उपधारा 2 का बी, एन एडवोकेट हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन इंडिया एनी कोर्ट इन इंडिया एंड हु हैज़ नॉट बीन डिबार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया, ये लिखा हुआ है। इसका आप एज अधिवक्ता आप परिभाषित करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको आता हूँ रूल 83 के ऊपर। अब एक्चुअली होता क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट ही कहते हैं सब अधिवक्ताओं के हमारे उसमें कोई स्थान नहीं है, अधिवक्ता इज़ नॉट अथराइज्ड इन जीएसटी एक्ट, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि मैं एडवोकेट नहीं हूँ तो मुझे ऐसा नहीं, लेकिन जो लोगों से साथियों से बात होती है उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। और मेरे एक साथी हैं राजीव अग्रवाल बरेली से, उन्होंने भी इस बात को अपना अनुभव बताया कि जब मैं किसी केस में गया तो मुझसे कहा कि एडवोकेट हमारे यहाँ कोई ऑथराइज नहीं है, एडवोकेट हम नहीं आ सकता है। इस बारे में मेरी अक्सर चर्चा होती रहती है। अपने एक बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं बनारस के, एडवोकेट BN रॉय साहब, और एक हमारे साथी हैं सहारनपुर के एडवोकेट विक्रम चावला जी, तो भी इस मामले में काफ़ी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको प्रशंसा करता हूँ। आप आइए रूल 83 में आप सी का 1 कहिए, सी का 1, ही हैज़ पास्ड। इसमें लिखा ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन हैविंग ए डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पर मेरे हिसाब से, मेरे विचार से इन्होंने लॉ के साथ में कॉमर्स, बैंकिंग, हायर ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इन चीज़ों को शामिल कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि इन्होंने जो रूल के अंदर रूल 83C के 1 में जो कहा है, इन्होंने मेरे हिसाब से लॉ को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, या उन्होंने एडवोकेट शब्द को नहीं शामिल किया। और इसमें इन्होंने ये रूल में ये भी कहा है कि साहब प्रैक्टिशनर जो होगा वो इसमें कर सकता है। जैसे आप इसमें देखेंगे एक रूल 83A में एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर 1 में दिया है, एवरी पर्सन रेफर्ड इन द क्लॉज B ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 83 एंड हु इज एनरोल्ड एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर अंडर सब रूल 2 ऑफ द सेड रूल shall passed an examination as per rule 3 of the said rule। जैसे मैंने बताया आप साथी, आपको इन्होंने जो रूल में जो घुमाया है इस चीज़ को, मेरे हिसाब से घुमाया जो है, आप रूल सेक्शन 116 पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने कहा है हिज रिलेटिव्स एंड रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब व्यापारी जो टैक्स पेयर है उसका रिलेटिव हो या कोई रेगुलर एम्प्लॉयर हो। और इसमें 2 के अंदर डी भी दिया हुआ है, रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स और डिपार्टमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और ऑफ द बोर्ड हु ड्यूरिंग हिज सर्विस अंडर द गवर्नमेंट हैड वर्क इन ए पोस्ट नॉट बिलो द रैंक देन दैट ऑफ ए ग्रुप बी रजिस्टर्ड ऑफिसर फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। अधिवक्ताओं को महत्व दिया है, लेकिन साथ में इन्होंने थोड़ा सा उसको हल्का करने की कोशिश करी है, जो मेरा विचार है। अब देखिए इसमें प्रैक्टिशनर के बारे में जो अक्सर मेरे साथ में आता है, जिक्र आता है कि सब प्रैक्टिशनर्स को हम अलाउ करते हैं। प्रैक्टिशनर्स कौन है? प्रैक्टिशनर्स के बारे में रूल 83A में दिया हुआ सारी चीज़ें, फ्रिक्वेंटली ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन एंड पेमेंट ऑफ फी, examination centers, period for passing the examination and the numbers of attempts। 7 में दिया है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग मार्क्स।
साथियों, मेरा मानना ये है कि एक तो आप बियॉन्ड द एक्ट, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नियम पास नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा है, ये जो दिया हुआ है आर्टिकल 220 में और एडवोकेट एक्ट 1961 में। अब उसके अलावा आपको नियम पास कर सकते हैं एक्ट में। इस बारे में मेरे सहारनपुर के जो विक्रम चावला साहब ने उल्लेख किया है, उन्होंने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मामले में, और जो मुझे उन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन को लेकर वो हाई कोर्ट में मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं कि वो इस काम के लिए बहुत अच्छी तरह लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, विचार करना पड़ेगा इस बात पे कि डिपार्टमेंट अधिवक्ताओं को महत्व क्यों नहीं दे रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, जब सेल टैक्स और वैट था उस समय अधिवक्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, लेकिन यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता था तो एडवोकेट्स को ही याद किया जाता, भाई लक्ष्य पूरा करा दीजिए, महीने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नंबर 2 बात, एडवोकेट की स्थान, अधिवक्ता का स्थान जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट स्टेट का, सेंटर का, या डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स है, उसमें क्या अधिवक्ताओं का महत्व ख़त्म हो गया है? अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जबकि मेरे निगाह में, मेरे विचार में, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस बारे में। एक मेरे मुरादाबाद के साथी हैं शिशिर गुप्ता जी ने भी बड़ा अच्छा चर्चा करी थी मेरे साथ में, कि भारत में क्या विदेश, हर देश में एडवोकेट्स होते हैं जो अलग अलग ट्रेड में काम करते हैं। जैसे कोई मोटर व्हीकल एक्ट में काम करता है, कोई रेवेन्यू काम करता है, कोई सिविल में काम करता है, कोई रेंट कंट्रोल में काम करता है। ऐसे ही टैक्स एडवोकेट में काम हमारे अच्छी संख्या में साथी लोग काम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि सरकार को रेवेन्यू दिलाने में जितनी बड़ी भूमिका टैक्स एडवोकेट्स की है, वो किसी एडवोकेट की नहीं है। मैंने आपको जो नाम गिनाए हैं एडवोकेट्स के, वो लोग सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, मतलब सरकार से खर्चे की बात करते हैं। लेकिन टैक्स एडवोकेट एक ऐसा एडवोकेट है जो सरकार को टैक्स जनरेट कराता है, सरकार को रेवेन्यू दिलवाता है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार के लिए टैक्स जनरेटर हैं, तो टैक्स एडवोकेट हैं, वो टैक्स जनरेट करा रहे हैं, तो एज ए टैक्स जनरेटर काम कर रहे हैं, क्या उनको महत्व देना कहाँ तक न्याय संगत है? क्या ये व्यवस्था, ये सोच विधि विरुद्ध नहीं हो सकती है? साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा, मेरे प्रश्नों पे, मेरे विचारों पे आप एक बार मनन अवश्य करें, और यदि ये मेरी बात से सहमत हैं और समर्थन करते हैं तो अपने लोकल बार में, जो आपके स्थानीय बार संघ है, उसमें इस विषय पे चर्चा अवश्य करें। और चर्चा करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आए, जो भी आपके विचार में, आपके मंथन में जो विचार आए, उसको आप पत्र द्वारा विधि मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय को अवश्य लिखें। और यदि आप कॉपी हमारे कर जानकारी के लिए भेजेंगे तो मैं सहर्ष इस अभियान में सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। कर जानकारी का प्रयास हमेशा रहा है कि अधिवक्ताओं की एकता, अधिवक्ताओं का महत्व वो सर्वोपरि है। तो साथियों, मेरे विचार पे मुझे विश्वास है आप अवश्य विचार करेंगे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410664214। और पुनः अनुरोध करूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने लोकल बार में शेयर करें, जिससे मेरा संदेश, मेरी भावना अधिक से अधिक अधिवक्ताओं में पहुँचे और वो इस विषय पे विचार करने के लिए बाध्य हों। इसके बाद नमस्कार, जय भारती, जय भारत, जय हिंद।